So let's move ahead with the 10th chapter. But before that, let me just tell you in short what we did in the previous lecture that is related to organs of government. Now, three organs of government: lawmakers, that is legislative, then there is executive, that is the one who executes the law, and then there is judiciary, that is at different level. We will be having different courts like district court, high court, supreme court, and the main objective of the country is always to maintain law and order, provide good lifestyle to the citizen, that is achieve welfare, develop the country, protect the freedom of the country. And for country's progress, what do we need is these three organs should be cooperative, they should work in cooperation, that is what we say, and there should be unity among them. And if there is unity, cooperation between these three organs, then a country can develop efficiently, and government also can administer the country very effectively and efficiently. Then the next we did was, what were the function? As I told you, each of these three organs will have their own functions, and naturally it requires expertise, and there is expert, those who are expert in that particular field will be a part of this particular organ of the government, and each organ will be administered by different people. As I told you, it has its own functions. And why different organs are managed by different people? So that the power is not misused. तो पावर डिवाइड किया जाता है अलग अलग लोगों में. It's not that one particular group is given all the work related to administration and all, but each one will be given different work, and this division of power is done in order to see that power को कोई misuse ना करे, right? Then our country has we have already used the word Republic India, parliamentary democracy, और सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, वैसे स्टेट लेवल पे we call it लोकसभा, राज्यसभा को ही हम कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, एंड स्टेट लेवल पे अकॉर्डिंगली सेम वी हैव असेंबली एंड काउंसिल, एंड पार्लियामेंट इज सेड टू बी द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, लेकिन पार्लियामेंट से एक स्टेप ऊपर और भी है, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. इवन द पार्लियामेंट कांट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन we say that parliament is the topmost organization, very important organization. Indian parliament, we have in it president, vice president, Rajya Sabha, Lok Sabha, और ये जो legislature हैं वो दो टाइप के होंगे, that is we have unicameral, that is one house, bicameral, that is two houses. Now at central level we have done, we have Lok Sabha, lower house, Rajya Sabha, upper house, लेकिन ज़्यादा पावर रहेंगे लोकसभा के हाथ में. और वही स्टेट लेवल पे हम दो हाउस को ये नहीं कहेंगे लोकसभा राज्यसभा, बिकॉज दैट बी वेरी कंफ्यूजिंग कि सेंट्रल लेवल का लोकसभा या स्टेट लेवल का. सो वी हैव गिवन डिफरेंट नेम्स. तो कंट्री लेवल पे इट इज़ लोकसभा राज्यसभा, उसी को हम स्टेट लेवल पे कहेंगे असेंबली काउंसिल. And most of the states have assembly. Some states they do have council, like महाराष्ट्र है, यूपी है, उनके पास दोनों हाउसेज हैं, असेंबली भी है, काउंसिल भी है. गुजरात के पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, राइट? और सेंट्रल लेवल का जो लेजिस्लेचर होगा दैट इज लोअर हाउस, लोकसभा, उनके मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पे जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको हमने पिकअप किए हैं, उनको हमने इलेक्ट किया हुआ है डायरेक्टली, एंड दे आर वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव. और टोटल 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, और 2 आर सिलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. फिर प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. फर्स्ट मीटिंग वो एड्रेस करेंगे. जॉइंट सेशन पार्लियामेंट की भी प्रेसिडेंट ही एड्रेस करेंगे. उसके अलावा कोई भी मीटिंग पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट अटेंड नहीं करेंगे. प्रेसिडेंट के पावर क्या होंगे? टू कॉल दी टू हाउसेस, राइट, फॉर some
डिस्कशन, इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल डिस्कशन मीटिंग के लिए, तो समन मतलब टू कॉल, तो लोकसभा राज्यसभा को समन करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। मीटिंग को स्टॉप करवाने का काम उन्हीं का है। पार्लियामेंट को अगर डिसॉल्व भी करना है तो प्रेसिडेंट के ही पास पावर रहेंगे ये। और कोई प्रपोजल दैट इज़ बिल, उसको एक्ट में कन्वर्ट करना है या नहीं, ये भी प्रेसिडेंट पे डिपेंडेंट है। तो प्रपोजल को अगर साइन किया गया तो वो प्रपोजल बन जाएगा एक्ट, और ये सिग्नेचर है कंपल्सरी डन बाय प्रेसिडेंट। देन लोकसभा इज नॉट परमानेंट, राज्यसभा इज परमानेंट। लोकसभा 5 साल के लिए होगा, फिर एक नया इलेक्शन होगा। पार्लियामेंट हाउएवर एज वी सेड जस्ट नाउ इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो सुप्रीम नहीं है, उसके ऊपर भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन विच इज टॉप मोस्ट। एंड पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर्स। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट एफर्ट से कोई लॉ बन गया, राइट, लेकिन वो लॉ कुछ ऐसा बना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी क्लॉज के अगेंस्ट जा रहा है, इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर कोर्ट में ये चैलेंज होगा एंड सुप्रीम कोर्ट विल नलिफाई सच लॉ। नलिफाई मतलब 0-0 हो जाएगा वो लॉ, इट नॉट बी एक्सेप्टेड एंड इट नॉट बी फॉलोड इन द कंट्री अगर वो लॉ इम्प्रॉपर है। फिर लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, अगर मेंबर बनना है लोकसभा का तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है, नॉट लाइक इंजीनियर, डॉक्टर एंड ऑल, BA, BCom, BSc, 10 पास, 12 पास, ये नहीं। व्हाट क्वालिफिकेशन योर मीन्स 25 years of age होना चाहिए उनका, he or she should be an Indian citizen, sound mind, should not be insolvent, मतलब bankruptcy नहीं होनी चाहिए, और वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी अ क्रिमिनल, सिंपल। फिर पीरियड ऑफ 6 months इज देयर बिटवीन दी सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, तो 2 मीटिंग होगी, जब अगर 2 सिटिंग होती है जैसे उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट में, तो बीच में 6 month का एक गैप होगा, कंपल्सरी इट इज, एक्सेप्ट क्राइसिस को छोड़ के। लोकसभा हाउएवर कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट बट आफ्टर कंसल्टिंग PM। तो लोकसभा को 5 साल के लिए होता है लोकसभा, फिर एक नया इलेक्शन होगा, लेकिन 5 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए और लोकसभा को डिसॉल्व करना है, और तो वो पावर है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन वो डिसॉल्व भी अकेले डिसीजन नहीं लेंगे, वो PM के साथ कंसल्ट करेंगे एंड देन दे कैन डिसॉल्व बिफोर 5 years। 5 साल कंप्लीट होने के पहले पार्लियामेंट को, लोकसभा को डिसॉल्व कर पाएंगे। अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट हाउस एंड कैन वोट, राइट। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का जो मेंबर होगा, ही कैन अटेंड द मीटिंग दो इज नॉट अ मेंबर। तो मेंबर्स तो मीटिंग अटेंड करेंगे, वोट भी करेंगे अपने हाउस में, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का मेंबर होगा, he can also attend the meeting, and though he is not a member of Lok Sabha, right, though not a member of Lok Sabha, he can attend the meeting, but if member of Rajya Sabha, he or she can vote in that house, right. And Gujarat state is how many members at that country level? That is 26 members in Lok Sabha and is for 5 years, as I told you. Quorum very important, मतलब कि अगर जैसे कि ट्यूशन क्लासेस में, सपोज दैट इन अ क्लास देयर आर 20 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे एक बैच के हैं, सो टेक इट एज मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। अब अगर 4-5 बच्चे एब्सेंट रहे तो बाकी के बच्चे कहेंगे नो मैम, चलो आज लेक्चर कैंसिल कर दो, नो देखो ना 4-5 बच्चे नहीं आए, दे इज दैट। बट फॉर मी ऑलवेज, एंड दिस इज एक्चुअली इट हैपन्स समटाइम्स, एंड आई टेल द चिल्ड्रन दैट अगर 2 बच्चे भी होंगे क्लास में, आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर एज इफ ऑल आर प्रेजेंट। द रीजन कि वो 2 बच्चों की क्या गलती है कि वो प्रेजेंट रहे, राइट। सो बिकॉज दे टुक एन एफर्ट, से इट्स रेनिंग हैविली येट दे केम ओवर योर, और या कुछ भी हो, जैसे स्कूल में छोटी मोटी टेस्ट चल रही है, काफ़ी बच्चे एब्सेंट हैं उस दिन, लेकिन 4-5-7 बच्चे आ गए उस दिन बैच में, तो वी विल कंटिन्यू विद द लेक्चर। वाई? बिकॉज उन बच्चों की गलती नहीं है कि वो आ गए हमारे यहाँ, राइट। उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट डाले हैं घर से यहाँ तक, घर से
क्लास आने में, फिर क्लास से वापस घर जाएंगे. दे हैव टेकन लॉट्स ऑफ पेन इन कैरिंग ऑन दैट वर्क. तो वी हैव नो राइट कि वो आए और हम कहें ओ 4-5 बच्चे एब्सेंट हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द लेक्चर, टुडे इज हॉलीडे, चलो तुम बैठ जाओ, कुछ ये कर लो वो कर लो. नो, दैट्स वेरी रॉन्ग. दैट इज वॉट आई थिंक एंड दैट इज वॉट वी डू, राइट. तो कोरम वो हुआ कि 20 में 10 बच्चे एब्सेंट हैं, 10 प्रेजेंट हैं, या समझ लो कि 7-8 भी प्रेजेंट हैं, बाकी के 10-12 एब्सेंट हैं. I need or we need to continue with the class, that quorum, the number of student to be there in the class, to continue with the regular lectures. तो quorum मतलब number of members present in the house of parliament plus walk-in out of the total members of that house. total member है suppose 545, suppose नहीं है 545 लोकसभा में, right. अब उसमें से उस दिन कितने प्रेजेंट होने चाहिए और काम होना चाहिए उस हाउस का, तो टोटल कितने चाहिए 1/10, तो प्रेजेंट होने ही हैं, तो मिनिमम कोरम ये चाहिए, राइट. 1/10 ऑफ लोकसभा तो हुए 55, मिनिमम कोरम राज्यसभा में चाहिए 1/10 ऑफ 250, मतलब 25 तो प्रेजेंट होने ही चाहिए. तो वो अपनी मीटिंग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, दे कैन टेक सम डिसीजन. नाउ फ्रॉम हियर वी हैड टू मूव अहेड. वी डिड अ पार्ट ऑफ इट. राज्यसभा के 250 मेंबर्स होंगे, राइट. ये अपर हाउस कहलाएगा, बट इट हैज लेस पावर्स देन लोकसभा. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टेट्स आर ओवर हियर, मतलब कि लोकसभा में कौन बैठेंगे, हमने जिनको पिकअप किया है, दे आर आ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. हमारे इलेक्शन के टाइम पे हमने वोटिंग से जिनको जिताया है, तो वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुए हमारे, दे गो एंड सिट इन द लोकसभा. अब जैसे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट लेवल, वैसे ही राज्यसभा में कौन होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉट कॉमन पीपल बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री. और 238 इलेक्टेड हैं और 12 को नॉमिनेट किया जाता है, दैट इज पिक्ड अप बाय प्रेसिडेंट. और ये है स्पेशल नॉलेज वाले, लाइक दोज हु हैव good knowledge, great knowledge or practical experience with respect to science and literature and dance and many more things, right. One person can't be the member of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Then qualification of Rajya Sabha members, right. जैसे कि लोक सभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होनी थी कि इंडियन सिटीजन, वो तो कॉमन है, फिर वहाँ पे एज अलग थी, यहाँ पे 30 है, बाकी सब सेम है. साउंड माइंड, शुड नॉट बी बैंकरप्ट, शुड नॉट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कोई और एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं होना चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट. ही शुड बी प्योरली ओनली अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट. गुजरात की 11 सीट्स है राज्यसभा में. राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व. जैसे हमने लोकसभा को हम कहते हैं ना कि हर 5 साल में एक नया इलेक्शन, राज्यसभा में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पिकअप किए हुए डायरेक्टली नहीं जाके बैठेंगे, वहाँ पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. सो राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व. हाँ, लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो हर 6 साल के लिए होंगे, राइट. एंड आफ्टर देयर 6th ईयर टर्म इज ओवर, तो नए लोग आ जाएंगे उनकी जगह पे. 1/3 members retire every 2 years and same number are elected. Term is for 6 years. Members are eligible for re-election, renomination. चलो 6 साल के बाद जैसे एक पर्टिकुलर मेंबर का टर्म खत्म हो गया, तो नेचुरली उसे निकालते नहीं, वो अपने आप ही वो उसका टर्म खत्म हो गया 6 साल का. अब नए लोग आएंगे तो उन्हीं में वो री इलेक्शन के लिए खड़े रह सकते हैं, वो रीनॉमिनेट हो सकते हैं, राइट. इट्स नॉट दैट ओनली फॉर वंस ही कैन कम फॉर 6 years, ही और शी कैन कम ट्वाइस ऑल्सो, थ्राइस ऑल्सो, अगर वो री इलेक्ट होते हैं. Then both the houses meet 3 times a year. जैसे summer, winter, rainy. Of course, is that way? True it is. कि दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा 3 बार मिलेंगे एक साल में. एक तो बजट बनने के टाइम पे, दैट इज समर, फिर मानसून, और फिर एक विंटर सेशन होगा. वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा. अब राज्यसभा के वाइस चेयरमैन को कौन पिकअप करेगा, राज्यसभा के मेंबर्स फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स.
अपने ही में से मेंबर्स में से चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को पिकअप किया जाएगा. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. स्पीकर ऑफ लोकसभा. अब स्पीकर कौन होगा ये तो तुमने कभी पार्लियामेंट की मीटिंग देखी होगी, राइट? द बैंक, द बेंच और चिल्लम चिल्ली, लॉट्स ऑफ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टू सी द प्रोसीडिंग्स. तो फंक्शन दैट इज प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा. अब मेन स्पीकर ऑफ लोकसभा का फंक्शन क्या है कि लोकसभा के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उसको शांति से आगे बढ़ाना, पीस मेंटेन करना, ऑर्डर मेंटेन करना पार्लियामेंट में, लोकसभा में, डिसिप्लिन मेंटेन करना एंड मेंटेन द रिस्पेक्ट और डिग्निटी ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस. मेंबर ऑफ लोकसभा विल इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. अब देखो, स्पीकर को भी मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट करेंगे अपने ग्रुप में से. अपने ग्रुप मतलब जितने मेंबर्स बैठे हैं वहाँ पे 500 प्लस, उसी में से वो लोग ही बैठ के खुद में से एक को इलेक्ट करेंगे स्पीकर और दूसरे को इलेक्ट करेंगे किसी और को एक डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स. स्पीकर्स डिसीजन इज ऑलवेज फाइनल, राइट? वोटिंग अगर होती है लोकसभा में और अगर टाई हो जाती है वहाँ पे, टाई मतलब कि 50-50 वोटिंग आ गई हाँ और ना में, तो अब जो वोट दिया जाएगा टाई के समय तो वो वोट होगा स्पीकर का. एंड स्पीकर विल बी पिक्ड अप वन मेंबर फ्रॉम लोकसभा. सपोज इज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और एनी अदर पार्टी, बट वंस द पर्सन बिकम्स स्पीकर देन he will not be partial towards his house. Then he or she as a speaker becomes neutral in giving the decision और speaker का decision final होगा. Speaker can be of any party, I told you just now, can have strong support of any political party, but after being appointed they have to remain impartial. Spelling REMAIN. Majority voting against the speaker, he can be removed. So spelling थोड़े rectification it needs, sorry for that. REMAIN SPEAKER, speaker. So majority voting अगर स्पीकर के अगेंस्ट चले गए कि भाई निकाल दो इसे, नेचुरली ही कैन बी रिमूव्ड. लेकिन आज के आज नहीं कहेंगे भैया कल से आना मत. नो, वो हमारे घर के सर्वेंट नहीं है, वो दे हैव दैट पर्टिकुलर स्टेटस एंड देयर आर सम प्रोसीडिंग्स दैट वी हैव टू फॉलो. एक पूरा एक प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है इफ यू वांट टू रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सीट, राइट? स्पीकर है, प्रेसिडेंट है, whosoever, there is a procedure, proper, perfect, not like कि घर में कोई काम पे आ रहा है और उसको हमने बोल दिया भैया हमें आप ठीक नहीं लग रहे, वी कांट मैनेज द वर्क दैट द वे यू आर डूइंग, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो भैया कल से मत आना, आपका पगार ले लो, कितना बनता है. दैट इज़ नॉट द वे दैट इज़ डन ओवर योर. उनको निकालेंगे, राइट? लेकिन एक इज्जत से, रिस्पेक्ट, ऑनर. और 14 डेज दैट इज कॉल्ड फोर्टनाइट, 14 डेज की नोटिस दी जाएगी. ऑल स्पीचेस क्रिटिसिज्म डन बाय एड्रेसिंग द स्पीकर. अब पार्लियामेंट में जब ये मीटिंग्स होती है तो लाइक सपोज इफ वी आर सिटिंग लॉट मेनी पीपल ओवर योर, तो मैं डायरेक्टली किसी से ऐसे ए तू चुप रहे, ये मत कर, वो मत कर, वी कांट डू दिस. इट्स दैट इज सेड टू बी ब्रेकिंग द डिसिप्लिन ऑफ द हाउस, राइट? तो जब भी हाँ क्रिटिसाइज करो, अपनी स्पीच देनी है तो दो वहाँ पे, बट इट इज टूवर्ड्स द स्पीकर. मतलब स्पीकर को एड्रेस करके ही बोलना होगा. टू पीपल कांट फाइट ओवर देयर, राइट? या टू पार्टीज कांट जस्ट फाइट ओवर देयर, या जबान से जैसे वर्ड्स से फाइट करना, दैट्स नॉट अलाउड. तो स्पीकर को एड्रेस करके सारा क्रिटिसिज्म भी होगा वहाँ पे मीटिंग में. Working of parliament is either in Hindi or in English, and speaker can allow any other language also क्योंकि final decision is always of the speaker. Any member of parliament if absent for 60 days continuously, तो उसकी सीट डिक्लेयर की जाएगी वेकेंट और एक फिर नया इलेक्शन होगा और उन्हीं मेंबर्स में से फिर से किसी एक को पिकअप किया जाएगा. तो दैट बी लाइक अगर वो स्पीकर की बात है, डेप्यूटी स्पीकर है, नहीं आए 60 डेज कंटिन्यूसली,
तो फिर अपने ही ग्रुप में से फिर से एक इलेक्शन होगा। लेकिन पार्लियामेंट का कोई मेंबर अगर 60 डेज तक कंटिन्यूसली ना आए, उसकी भी सीट वेकेंट डिक्लेयर की जाएगी, लेकिन वहाँ पे देयर विल बी डिफरेंट इलेक्शन कैरिड आउट। सो ये नहीं कि 4 दिन आए फिर 1 दिन एब्सेंट, फिर 2 दिन आए फिर 1 दिन एब्सेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट 60 days continuously, right? Then only his seat or her seat in a parliament as a member of parliament will be declared vacant and new election there. Now, casting vote. During proceeding, if any question, problem, matter, anything, if it arises, और फिर इक्वल वोट आते हैं, तो देखो एक मीटिंग चल रही है हाउस में और कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम या मैटर पे डिस्कशन हो रहा है, फिर वोटिंग हो रही है, कोई कहता है हाँ कोई कहता है ना, तो बोलते हैं चलो भाई वोटिंग करते हैं। दैट्स अ सिंपल मेथड। वोटिंग में अगर इक्वल वोट आ गए तो फाइनली एज आई टोल्ड यू कास्टिंग वोट होगा, उसे हम कहते हैं कास्टिंग वोट। मतलब टाई के टाइम पे स्पीकर्स वोट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। Sri Ganesh Vasudev Maulankar was the first speaker of Lok Sabha, and if speaker is absent, तो डेप्यूटी स्पीकर आ जाएंगे उनकी जगह पे इन द एब्सेंस ऑफ बोथ। और एक है वंस अगेन कैंसल ए स्पीकर्स पैनल। अब पैनल क्या है तो आई डोंट नो कि भाई आपको कितना याद है 8th स्टैंडर्ड का, बट येस आई रिमेंबर कि 8th में ये हमने पढ़ाया था कि एक छोटा सा एक पैराग्राफ था रिलेटेड टू नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में एंड रिलेटेड टू सम अदर जुडिशरी का चैप्टर था वो, और वहाँ पे अलग अलग पैनल्स होते थे, वाटर ट्रिब्यूनल एंड मैनी अदर ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल यहाँ पे हम कहेंगे पैनल, राइट? तो पैनल मतलब कि a group of people, maybe 3, 4, 5, 6 any, but who are they know about how to carry on with the proceeding of the house, right? तो वो पैनल यहाँ पे बैठ के मीटिंग कंडक्ट करेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने मीनिंग दिया हुआ है, पैनल मतलब पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड एंड फैमिलियर विद द प्रोसीजर ऑफ दैट हाउस। उसे सब एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, दैट पर्सन शुड बी फैमिलियर, दैट पैनल शुड बी फैमिलियर। इट्स नॉट 1 person पैनल, इट मे बी 3, 4, 5। तो अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट रहे तो फिर वी कैन से दैट पैनल एंट्री लेगी, स्पीकर पैनल एंट्री लेगी और फिर वो मीटिंग कंडक्ट करेगी। नाउ व्हेन कैन अ बिल बिकम एन एक्ट? द प्रपोजल is called a bill, and a very important one marker कि प्रपोजल को हम जब तक कि वो पास नहीं हो रहा है, जब तक कि प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे, उसको हम कहेंगे बिल। द मोमेंट प्रेसिडेंट साइंस इट बिकम्स द लॉ ऑफ द कंट्री। तो पार्लियामेंट में वॉज दैट इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज डन, दैट इज ऑफ ऑगमेंटिंग। मतलब देखो अगर पुराने लॉज हो गए तो निकाल दो उसे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। नए लॉज फ्रेम करो, नलिफाई ऑब्सोलेट लॉज जो अभी काम के रहे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल सम लॉज रिलेटेड टू एनी, यू कैन से मे बी सम इनकम टैक्स और एनी रेवेन्यूज़ एंड मतलब कि एनी टैक्सेस के रिलेटेड कोई लॉ पास होना है, या हमारी कंट्री के कोई भी नए लॉज बनाने हैं, या कोई रिफॉर्म करना है, कुछ नयापन ले आना है। तो एज आई टोल्ड यू इन वन ऑफ द चैप्टर बिफोर इन सिविक्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लाइव डॉक्यूमेंट, राइट? तो ये हुआ यहाँ पे एक लाइव डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों हम उसको लाइव डॉक्यूमेंट कहते हैं? बिकॉज many years back, that is 1947, बहुत साल हो गए, 70, more than 70। तो अब 70 years पहले जिन मेंबर्स ने बैठ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, पास हुआ, लोगों ने फॉलो करना शुरू किया उसके राइट्स, ड्यूटीज, रूल्स, रेगुलेशन एटसेट्रा, लॉट मेनी थिंग्स। लेकिन तब जिन्होंने फ्रेम किया वो 5-10 साल के बच्चे तो थे नहीं, तब भी वो आज 80 के हो जाते।
अच्छा वो डायरेक्टली वो बॉन्ड नहीं हुए थे, नहीं तो आज वो 70 प्लस होते। वो थे कहीं ना कहीं 40s या 30 प्लस या 50s या 60s या 65। अब सोचो 70 एक कॉमन एक नंबर ले लो, 70 इयर्स बैक 50 के एज के लोगों ने, जस्ट हम एक 2 फिगर ले लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग कि 70 इयर्स बैक इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, तब जो मेंबर्स थे वो 50s के थे। लेट्स टेक ओनली वन नंबर। अब ये 50s वाले लोग, वो उन्होंने उस समय उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस, उस समय की हमारी कंट्री की स्थिति और ये सब देख के उन्होंने लॉज बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, राइट। उस समय के बिजनेस, प्रोफेशन एंड ऑल के हिसाब से टैक्स लगाए थे, फिर उस समय के व्हीकल्स के हिसाब से टैक्स पास हुए थे। सो बट नाउ आफ्टर 70 ईयर्स, मतलब कि आज वो होते तो कितने के होते, 120 ईयर्स या 130 ईयर्स के या 140 ईयर्स के या 120 ईयर्स के या मिनिमम 100 ईयर्स के। तो आज के 10, 15, 20, 25, 50 साल के लोग 100 साल के लोगों की सोच को फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे, घर में ही देख लो, तुम अपने डायलॉग्स याद करना कि कभी तुम लोगों ने ये डायलॉग कहा ही होगा घर में अपने नाना नानी या दादा दादी से, प्लीज़ हमें सब पता है ऐसे नहीं होता, ये चीज़ ऐसे ही करते हैं, बट योर ग्रैंड पेरेंट्स विल से नो। तो दोनों की सोच अलग, जबकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मे बी 50 और 60, और यहाँ पे तो 100 से ज़्यादा साल का डिफरेंस। हाउ कैन वी डाइजेस्ट दैट टाइम लॉज विच वर फ्रेम एज पर दैट टाइम इंडियन मेंटालिटी एंड रीति रिवाज और सिचुएशन ऑफ द कंट्री विच वॉज जस्ट न्यूली इंडिपेंडेंट एंड ऑल। तो हमें वो ओल्ड लॉज या तो हम निकाल देंगे, नए बनाएंगे, 0 कर देंगे ऑब्सोलेट लॉज, और अगर पुराने लॉज तो काफ़ी चल भी रहे हैं आगे आज भी, ऐसे नहीं कि सारा कुछ 0 कर दिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने, लेकिन वही पुराने लॉज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया हमने, राइट। और कई हमने एकदम से नए भी लेके आए, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं तब तो थी नहीं, तो नेचुरली उस टेक्नोलॉजी के लिए भी एक कोई नया लॉ पास करना है हमें, XYZ लॉ, तो वो तो अभी बनेगा ना नया, थोड़ी ना 70 ईयर्स बैक ये टेक्नोलॉजी थी, या 20 साल पहले या 50 साल पहले था ही नहीं कुछ ऐसा। अब वो टेक्नोलॉजी अब हम यूज़ कर रहे हैं 10, 15, 20 साल से, तो नेचुरली उसके लिए नया लॉ 20 साल पहले ही बना होगा। देन एनी बिल टू अमेंड, अगर हमें टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई बिल पास हो रहा है, मतलब कोई बिल हम जैसे प्रपोजल लिख रहे हैं, हम नहीं, लोकसभा राज्यसभा में, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बदलाव लाना है, एक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्ट, राइट, बाय पासिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। तो कोई भी बिल एक्ट कब बनेगा, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना है तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। एनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस, चलो लोकसभा के मेंबर्स को लगा मीटिंग करने के बाद, सोचने के बाद कि चलो एक प्रपोजल रखते हैं, फिर मीटिंग होगी, तो कोई भी हाउस ये प्रपोजल रख सकते हैं। इट कैन बी प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो ये बिल कौन प्रेजेंट करेगा, या तो पार्लियामेंट का मेंबर होगा या मिनिस्टर। एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ बिटवीन द 2 हाउसेज इन द पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट में ही कहीं ना कहीं डिस्प्यूट तो होते ही रहते हैं, तो अगर कोई ऐसा होगा, कोई कहता है हाँ उस बिल के लिए, कोई कहता है नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए, तो एक जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी, और ये मीटिंग कौन बुलाएगा, ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नेचुरली प्रेसिडेंट के पास ये राइट है, ही कैन कॉल द मीटिंग, अ जॉइंट मीटिंग। प्रोसीजर ऑफ ऑर्डिनरी बिल बिकमिंग एन एक्ट, तो अलग अलग टाइप्स के बिल होंगे। ऑर्डिनरी बिल है, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल, फिर है मनी बिल है एक, तो नेचुरली नाम पे से ही पता है फाइनेंशियल बिल इट इज। तो फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल, understand it properly and you will have to learn it perfectly, of course. Procedure of ordinary bill becoming an act. The minister
प्रेजेंटिंग अ बिल इन पार्लियामेंट, उसको हम कहेंगे फर्स्ट रीडिंग। जैसे ही किसी मेंबर ने या मिनिस्टर ने उस प्रपोजल को, जिसको हम कहते हैं बिल, उसे प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में, दैट वी वांट दिस इज सम स्मॉल मॉडिफिकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन XYZ, कुछ भी उसको थोड़ा सा अमेंडमेंट लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कोई नया सुझाव वो पेश करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं बिल, एज आई टोल्ड यू, वो फर्स्ट रीडिंग होगी। एक्चुअली ओवर योर द वर्ड रीडिंग मतलब नहीं कि मैं ये पेपर लेके बैठ गई, चलो रीड करना शुरू एंड ऑल, नो। फर्स्ट रीडिंग मतलब बिल को पेश करना, प्रेजेंट। फिर उसका टाइटल होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखा जाएगा, रीजंस देने होंगे वहाँ पे कि क्यों उसने वो प्रपोजल रखा, इस सब पे डिस्कशन होगा, दैट इज इट विल बी डिस्क्राइब्ड। बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन रिकमेंडेशन इज नेसेसरी। चेयरमैन रिकमेंडेशन मतलब चेयरमैन को पूछना होगा, राइट। चेयरमैन रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब सुझाव, सजेशन, राइट। तो चेयरमैन का सजेशन बहुत ज़रूरी है लेजिस्लेटिव असेंबली में। वंस अगेन, अगर किसी मेंबर को बिल प्रेजेंट करना है तो पहले किसे उसे पूछना होगा, चेयरमैन। एट सेंट्रल लेवल किसको पूछना होगा, प्रेसिडेंट। टू लेवल, सेंट्रल लेवल पे किसे पूछना होगा, अगर बिल प्रेजेंट करना है तो प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए, और अगर स्टेट लेवल पे कोई बिल प्रेजेंट करना है तो चेयरमैन को पूछना होगा। फर्स्ट रीडिंग, तो पहली रीडिंग मतलब एक छोटी सी डिस्कशन होगी, और वहाँ पे क्या होगा, वो डिस्कशन में सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन उस मेंबर को देना है कि भाई टाइटल क्या है उस सजेशन का या प्रपोजल का या बिल का, ऑब्जेक्टिव क्या है उस बिल को पेश करने के लिए, रीजंस क्या है, वो सब डिस्कस होगा। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग। ऑब्जेक्शंस आर अलाउड बट विथ रीजंस। ऑब्जेक्ट करो, गो अगेंस्ट द बिल, अलग पार्टी वाले अपोज भी करेंगे, बट रीजंस, वैलिड रीजंस होने चाहिए। और फिर वोटिंग होगी अगर ज़रूरत पड़े तो। बाकी सब मान गए तो ठीक है, नहीं मानते, तू मैं हो रही है, देन इन दैट केस वोटिंग हो सकती है यहाँ पे। अब डिस्कशन विल बी डन सेक्शन वाइज। फॉर एग्जाम्पल, पूरा फर्स्ट चैप्टर एसएस का जब हमने किया, या कोई भी चैप्टर्स या इंग्लिश का, तो खाली हेडिंग रीड कर लिया, ऑथर का नाम मैंने बता दिया, पोएम की तो पोएट का नाम बता दिया, देन ऐसे ओके फाइन, चलो हमने देख लिया, देयर आर 3 स्टैंजास इन दिस पोएम, दिस आर द मीनिंग दैट आई हैव शोन यू ओवर हियर, आप समझ लेना बाद में, ठीक है, जस्ट गो थ्रू, कुछ है तो मुझे पूछ लेना। दैट्स नॉट द वे। इसे हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने कुछ आपको पढ़ाया। इसी तरह से डिस्कशन, यहाँ पे डिस्कशन होगा बिल के रिलेटेड बट सेक्शन वाइज, राइट। ऑब्जेक्टिव्स एग्जामिन किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे, फिर उसके रिपरकॉशंस होंगे, मतलब कि रिएक्शन, दूसरे कई लोग ऐसे होंगे जो अपना रिएक्शन बताएंगे, वहाँ पे सब कुछ एग्जामिन होगा ठीक से। अमेंडमेंट्स फिर होंगे, अमेंडमेंट्स आर डन बट ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एसोसिएशन, ओपिनियन ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, एंड देन वोटिंग इज कैरिड आउट। तो अमेंडमेंट होंगे, जो प्रपोजल पेश किया वो पास भी होगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लोगों का भी सुझाव होगा, उसमें अलग अलग एसोसिएशन भी उसमें अपना सुझाव डालेंगे, ऑपोजिशन पार्टी का ओपिनियन ध्यान में रखना होगा, वोटिंग कैरी आउट होगी, फिर जाके वो थोड़ा सा बदलाव ला सकते हो तुम। समटाइम वर्कलोड, फिर कई बार ऐसे होता है कि मेंबर्स का वर्कलोड बहुत होता है, मेंबर्स ऑफ द हाउस, तो बिल कैन नॉट बी पास्ड, तो उस समय कौन काम करेगा, एक्सपर्ट्स कमेटी। अब एक्सपर्ट की कमेटी आएगी, जैसे अभी आगे हमने किया पैनल, तो ऐसे यहाँ पे एक्सपर्ट का एक ग्रुप होगा, जिसे तुम पैनल कह सकते हो, कमेटी कह सकते हो। दे विल गो थ्रू दिस प्रपोजल,
वो डिस्कशन करेंगे जो नेसेसरी है, अपना सुझाव देंगे, रिपोर्ट रेडी करेंगे। फिर उस पर्टिकुलर हाउस जिसमें ये सुझाव पास हुआ था लेकिन वर्कलोड की वजह से वो मेंबर अपनी मीटिंग आगे कैरी आउट नहीं कर पाए और उन्होंने वो सारा काम दे दिया इस पैनल को, एक्सपर्ट को, तो वो फिर एक्सपर्ट पूरा काम कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे टू दैट पर्टिकुलर हाउस जहाँ पे बिल पेश किया गया था। फिर बिल भेजा जाएगा फॉर द थर्ड रीडिंग। अ थर्ड रीडिंग परफेक्ट, जैसे तुम्हारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म दैट इज फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड एग्जाम, बीच बीच में छोटी मोटी चिटर पिटर 10 मार्क की, 15 मार्क की, 25 मार्क की एग्जाम। लेट्स सी दिस ईयर व्हाट हैपेंस, बट दिस ईयर एज इट इज दे हैव स्टार्टेड विद 25 मार्क्स एग्जाम। बट इन नॉर्मल कंडीशन व्हेन यू चिल्ड्रन यूज्ड टू गो टू स्कूल तो वहाँ पे काफ़ी छोटी मोटी एग्जाम होती थी, यूनिट टेस्ट एंड ऑल, लेकिन अदरवाइज 3 एग्जाम्स। जैसे फर्स्ट एक तुम्हारी होती थी लाइक एट द टाइम ऑफ नवरात्रि के पहले या कई बार नवरात्रि के बाद कई स्कूल में, फिर उसके बाद जैन एंड देन फाइनली देयर इज योर अप्रैल में या मार्च में फाइनल एग्जाम। तो यहाँ पे वैसे 3 रीडिंग होती है। ये थर्ड रीडिंग है जो फाइनल है, फॉर्मल है, एक्सेप्ट होगा ये बिल या रिजेक्ट होगा। लेकिन एक्सेप्ट होगा तो ठीक है, रिजेक्ट हुआ तो रीजंस दो। जो रिजेक्ट कर रहे हैं, जो अपोज कर रहे हैं, उनको रीजंस देने होंगे, वैलिड रीजंस। फिर उसके बाद वोटिंग होगी, फिर मेजॉरिटी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर प्रेसिडेंट की साइन होगी, फिर जाके वो बिल बनेगा एक्ट, राइट। लेकिन प्रेसिडेंट तक पहुंचने के पहले भी इम्पॉर्टेंट लोगों की सिग्नेचर चाहिए। तो बिल पास हो गया, ठीक है, मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्ट बन जाएगा। अब ये पास्ड बिल एक्ट बनने के पहले चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हाउस विल साइन इट, देन चेयरमैन ऑफ द सेकेंड हाउस विल साइन इट विद सम मॉडिफिकेशन, थर्ड सिग्नेचर इज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दैट इज फाइनल सिग्नेचर। फिर जाके ये बिल बनता है एक्ट। सपोज इफ बिल इज नॉट पास्ड, फर्स्ट हाउस में तो पास हो गया, सेकेंड हाउस में पास नहीं हुआ, फिर से भेजेंगे फर्स्ट हाउस में, राइट। बट इफ सेकेंड हाउस डजंट रिटर्न द बिल फॉर 6 मंथ, तो फर्स्ट हाउस को मान लेना है कि भाई रिजेक्ट हो चुका है। तो वंस अगेन बिल फर्स्ट हाउस ने पास कर लिया, सेकेंड हाउस में पास नहीं हुआ, वो फर्स्ट हाउस को बिल वापस भेजेंगे कि भाई मॉडिफिकेशन थोड़े चाहिए, थोड़े अमेंडमेंट करने हैं, कर लो। बट अगर सेकेंड हाउस रीड करने के बाद उसको, सेकेंड हाउस मतलब लाइक लोकसभा राज्यसभा, अगर वो रिटर्न करे ही नहीं उस बिल को 6 महीने तक, तो फर्स्ट हाउस समझ जाएगा कि भाई इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इफ 2 हाउसेस डिस्प्यूट, फाइट कर ले, ये नहीं होगा, ये हो रहा है, राइट। इफ 2 हाउसेस डिस्प्यूट, तो फिर जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी, लड़ाई झगड़े सॉल्व होंगे थ्रू मेजॉरिटी। बिल व्हेन सेंट टू प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है वापस, या तो प्रेसिडेंट साइन करेंगे, या प्रेसिडेंट अपने पास रखेंगे, या फिर वो वापस पार्लियामेंट में भेजेंगे कि भाई फिर से एक मीटिंग कर लो, रिकंसीडर करो, मतलब गो थ्रू इट वंस अगेन। अगर कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है तो देख लो, चेक कर लो। बिल बिकम्स एन एक्ट, फिर बाय द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट फाइनली गवर्नमेंट गैजेट में वो पब्लिश होगा। देन दिस एक्ट इज एनफोर्स्ड, मतलब हमारे सामने आएगा एंड वी हैव टू फॉलो इट। नाउ बिल टू बी पास्ड, बिल को पास करना है, व्हेन एनी बिल इज टू बी पास्ड तो मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट चाहिए, राइट। नाउ सी लेट्स रीड ओवर हियर, सी व्हेन एनी बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा हल्का सा बदलाव लाना है, तो एक सुझाव पास हो रहा है इन एनी ऑफ द हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, तो इट हैज़ टू बी पास बाय द मेजॉरिटी नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, राइट। लोकसभा वालों ने एक सुझाव पास किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है, तो वहाँ पे कितने लोगों को हाँ कहना है, पहले तो लोकसभा में ये सुझाव रखा गया। तो फर्स्ट स्टेप, 2/3 of the members who are present and voting
उनकी हाँ होनी चाहिए, तो 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा ये बिल, राइट। इफ अ बिल पर्टेन्स टू एनी मैटर रिलेटेड टू द सेंटर और स्टेट, लेकिन यही बिल कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, then it requires the permission of more than half of the legislative assemblies of the state. तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा स्टेट असेंबली की हाँ होनी चाहिए, मतलब कि से फॉर एग्जाम्पल 28 स्टेट, तो 15 स्टेट असेंबली में ये उनकी हाँ होनी चाहिए, राइट। दिस बिल ऑल्सो गोज थ्रू द सेम प्रोसीजर लाइक द ऑर्डिनरी बिल। वंस अगेन, if bill is to be passed in any of the house, तो मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे कि 10 लोग हैं तो 7 को हाँ कहना है तो ही वो बिल पास होगा, मतलब आगे बढ़ेगा। तो मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट है 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स एंड देयर वोटिंग इज रिक्वायर्ड। इफ बिल इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी स्टेट और सेंट्रल इशू, तो फिर 50 से ज़्यादा परसेंट, मतलब 50% से ज़्यादा स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन की ज़रूरत होगी। अगेन दिस बिल हैज़ द सेम प्रोसीजर एज ऑर्डिनरी बिल। सो वी स्टॉप ओवर हियर एंड प्लीज वंस अगेन गो थ्रू फर्स्ट पार्ट, दिस सेकेंड पार्ट अगेन रिवाइज करते रहो, तो ही जब थर्ड पार्ट पे पहुंचेंगे तो एक लिंक बैठेगी। And keep on revising. Nothing more can I say over here. So thank you once again. And there's a new system that we have brought over here, so there'll be a bit of slight